Morning. Welcome to Mom Talk Thursday. So I'm going to wait for people to join in, and if you're new here, so let me tell you, I go live every Thursday at 11:30. Sometimes the time change, but I'll let you know. And I go live every Thursday. I come here to answer your questions regarding parenting, to chit chat, to tell you that you're not alone in the parenting journey that you're doing. हम सब गुजर रहे हैं उससे. एंड जब तक सारे ज्वाइन करते हैं, जब तक आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी शेयर विद यू हाउ माई वीक वॉज. दैट इज़ हाउ वी डू. एंड ये वीक का टॉपिक इज़ Q&A. इफ़ यू हैव सीन माई स्टोरीज, तो मैंने इसमें पूछा था कि क्या करना चाहिए, Q&A करें कि सिबलिंग राइवलरी के बारे में बात करें. ट्रस्ट मी, डिफरेंस इतना ही था. एंड आई वॉज फीलिंग सो हार्ट ब्रोकन. मैंने कहा, ओ माई गॉड, सो मेनी पीपल वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट सिबलिंग राइवलरी, लेकिन Q&A का वोट ज़्यादा था. सो आई हैव टू कीप माई वर्ड. बट आई विल डू सिबलिंग राइवलरी नेक्स्ट वीक. ठीक है, प्रॉमिस. Okay, having said that, I will just recap of how my week was till the time all the questions starts coming. Hi everybody. Hi Kamya. Hi Anuka Var. Okay, hi. So my week, as a parent, थोड़ा ups and downs था. I had challenges myself. Suddenly my son was, मतलब मेरा बच्चा जो था ना, I won't say power struggle, but yeah, a little bit of a rude behavior was there, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है. So I am also trying to understand कि उसका vocabulary इतना change क्यों हो गया है. But I also understand that with time बहुत चीज़ें होती है, and as a parent we just have to guide them, because अगर आप मेरे को जानते हो और जरावर को जानते हो, then he is a very strong willed child. उसको कोई भी चीज़ को अगर मैं सीधा जाके बोलूँगी ये नहीं करना, तो वो जाके वो ज़रूर करेगा. सो आई हैव टू फाइंड अ वे टू नेविगेट इट एंड मेक हिम अंडरस्टैंड. ऑल इन ऑल माई वीक वॉज गुड, लिटिल ओवरवेलमिंग. हैव मेड फ्यू डिसीजंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँगी. एंड सो दैट्स हाउ माई वीक वॉज. हाउ वॉज योर वीक? लेट मी नो. हाउ वॉज योर पेरेंटिंग लास्ट वीक? कितने ट्रिगर पॉइंट्स हुए, कितनी बार चिल्लाना हुआ, कितनी बार अपने आप को रोका. You know, how was your week regarding कि गुस्सा आया, but somehow you took a moment and you said, okay, you know, this is not worth it. I can find a better way. So let me know your wins, if there were any wins. And मेरे लिए 2-3 जगह there were good wins I had. Even yesterday he was, हम नीचे गए हुए थे पार्क में, and he was having a hard time and he didn't like. I had to set a boundary. तो मैंने बोला कि अगर आपने फिर से किया, then I will have to take it from you. And he did the thing again, and मेरे को वो चीज़ लेनी पड़ी उससे. And of course as a 5-year-old उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसकी चीज़ ले ली. So हाँ, tantrum हुआ, for sure हुआ. But then मैंने एक चीज़ सीखी है in last 2 years की, जब कुछ काम नहीं करता ना, कुछ भी, it's better to just step back a little, थोड़ा सांस लो, let your child also breathe a little. और उसके बाद आप क्या करो इज कि मेक इट फन, मेक इट फनी इन सम वे, यू नो, डू सम काइंड ऑफ अ जोक. गो देयर, उनसे बोलो, अच्छा ये ऐसे क्यों हो रहा है, अच्छा ये क्यों कर रहे हो, यू नो. अच्छा लाइक येस्टरडे वो कोई एंट को देख रहा था, तो गुस्से में था, बट ही वॉज वेरी क्यूरियस कि वो एंट क्या कर रही है. तो आई जस्ट वेंट एंड स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन अबाउट द एंट, एंड उसका जितना गुस्सा था, दैट जस्ट ही फॉरगॉट दैट ही वॉज एंग्री. And it just broke the ice. So if nothing works, what is going to work is your humor. Okay, so I'm going to start with the questions now. I always request you to put the questions in the question mark वाला जगह, so that it stays there. Otherwise ये ऊपर चलते रहते and फिर समझ में नहीं आता है. Okay, I'll take this question first. Rakshita. Here, I'll just pin the comment. Rakshita says, hello ma'am, my 10-month-old have started slapping everyone who carries her. How to stop it? See, 10 months is baby actually. Very, like, honestly, they are just, वो क्या कर रहे हैं ना, they are just trying to explore. They are just trying to see how much can I push. They are just trying to see कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसका reaction कैसे आ रहा है. Sometimes the more we say stop it, the more they're going to do it. The more we say don't do it, the more they're going to do it, because
they actually don't understand no. What they understand is your actions. Okay. Is it too much noise? ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्या? Then I can go inside and take the live. Just let me know. I think some work has started. Is it too much noise at the background or you can hear me? ठीक है, इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं रक्षिता का वो करती हूँ. Is it too much noise at the background or you can hear me? ये बता दो मुझे. Yes, too much noise. Okay, Pankaj. Then I'll go inside. Just give me a second. लुको, जगह चेंज कर लेते हैं. आंसर देते देते. हाँ. So what was I saying? रक्षिता is कि you have to. So what they don't 10 months को ना vocabulary है, ना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. ठीक है. So what you need to do with them is, अरे भाई बंद हो जा, कि you need to show it to them. जैसे अगर वो मेरी गोदी में है, सपोज आपका बच्चा, ओके, एंड योर चाइल्ड कम्स टू स्लैप मी, ओके. पहली बात, इफ यू आर अ मदर यू विल कम टू नो इन एडवांस कि ये होने वाला है. वी हैव दिस इंट्यूटिव थिंग, ओके, कि जहाँ हमें समझ आ जाता है कि ये होने वाला है, एंड वी आर लाइक वी कैन स्टॉप इट. लाइक हम उससे पहले उसको बोल दे नो नो नो, don't do this, okay. But if I was you, I would actually just hold the child hand and say, I'm sorry, you cannot hit, or hitting hurts, okay. Your child may not understand. आपका बच्चे को हो सकता है समझ ना आए, बिकॉज उसको पता नहीं ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बट उसको आपका एक्शन समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक्शन समझ में आ जाएगा इन द सेंस कि जब आप उसका हाथ रोक लेंगे ना आराम से, उसको समझ में आ जाएगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ. 2 बार रोकेंगे, 3 बार रोकेंगे, उसको समझ में आ जाएगा ये नहीं कर सकता. अगर आपका बच्चा सिर्फ 10 महीने का, आप उसको नो बोले, हंसे, गुस्सा दिखाए, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है. सो व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज दैट नेक्स्ट टाइम वो ऐसे करे, यू जस्ट होल्ड द हैंड एंड यू से आई एम सॉरी, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं कर सकते. और अगर आपका बच्चा किसी और के पास है और आपका बच्चा उसको ऐसे स्लैप करता है, देन एज अ पेरेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग योर चाइल्ड एंड से आई डोंट थिंक यू आर रेडी राइट नाउ, आप मेरे पास ही रहो, यू नो. तो योर बच्चा विल अंडरस्टैंड द एक्शंस मोर देन द वर्ड्स. उनकी ना वोकैबुलरी बिल्ड हुई है, उनको ना वर्ड्स के मतलब पता है, तो आप उनको बोलते रहे, उनको नहीं समझ में आता है. ठीक है, हमें लगता है कि बच्चों को नो समझ में आता है, बट ऑनेस्टली उनको नो से ज्यादा ये समझ में आता है कि ये करते हो तो मेरे हाथ में मुझे ऐसे पड़ती है, या फिर अगर मैं ये सब करता हूँ तो मम्मा नो तो बोलते हैं, यू नो, बट उनको वो नो का मीनिंग नहीं समझ में आता. मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, हमारे माइंड को ना नो वैसे भी समझ में नहीं आता है. व्हेन आई से डोंट जंप ऑन द कुशन, ठीक है, ओके रक्षिता. इफ आई से रक्षिता डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट, ओके रक्षिता, व्हाट विल हैपन इज द मोमेंट द पिक्चर इन योर माइंड इज गोइंग टू बी अ पिंक एलिफेंट, वेदर यू लाइक इट और नॉट. ओके, यू कैन नॉट टेक द पिंक एलिफेंट आउट ऑफ योर हेड. जबकि मैंने आपको बोला रक्षिता डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, राइट. सो वैसे बच्चों को या ह्यूमन माइंड में नो नेगेटिव्स नहीं समझ में आते हैं. सो इट्स बेटर दैट इफ योर चाइल्ड इज यंगर, what you do is, if your child is younger, you do actions, you hold their hand gently, you take them out from the situation, okay. अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो तो भी ऐसे हिटिंग कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है या फिर स्लैप कर रहा है, देन एट दैट टाइम यू टेल देम द ऑल्टरनेट. लाइक अगर मेरा बच्चा हिट कर रहा है, मुझे दिख रहा है वो हिट क्यों कर रहा है, पहले तो हमेशा मैं कहती हूँ हिटिंग के पीछे ना एक रीजन होता है, हमेशा होता है. ठीक है, या तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, या उसको अपनी चीज नहीं मिल रही है, या उसको वो, आप समझ रहे हो, जब आपकी जिंदगी कोई और पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इवन यू विल नॉट लाइक इट. सो समटाइम्स वेरी स्ट्रॉन्ग विल चिल्ड्रन डोंट लाइक इट एंड दे स्टार्ट हिटिंग, बिकॉज उनको लगता है मेरे बस में कुछ है ही नहीं, द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन हिट. सो उस टाइम में हम इन बच्चों को रीडायरेक्ट करते हैं, इन द सेंस आई से आई अंडरस्टैंड दैट यू आर एंग्री but you cannot hit me. उसमें भी you can hold your child's hand like this and say I'm sorry, this is not done. And you can ask your child, if you want, you can go and you can punch a pillow or you can draw, you know. So Rakshita, for a 10-month-old, I have answered you, no is never going to work. अभी तो वो सिर्फ slapping पे है. When the child gets into 2.5, 3, the hitting starts, the spitting starts, the children will throw tantrums, they will lie down on the floor, they will push. So Rakshita, my darling, please be prepared. You know, as a parent, be prepared कि ये होना ही है. My child is not anything different. Okay, 96% of the children throw tantrum under the age of 3. It's normal. सारे बच्चे करते हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी देश हो, सब करते हैं.
ठीक है रक्षिता? सो यू गो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ काम एंड डोंट टेक इट पर्सनली. आपका बच्चा आपकी वजह से नहीं कर रहा है, आपका बच्चा आपको एम्बैरेस करने के लिए नहीं कर रहा है, वो भी सीख रहा है. ठीक है? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन रक्षिता, एंड ट्राई कि आप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कामनेस में जाइए उसके साथ. ठीक है? आप ये समझिए ये नॉर्मल है, मुझे सिर्फ इसको हेल्प करना है रेगुलेट करने के लिए. लाइक मैंने बोला ना, लास्ट वीक वॉज लिटिल टॉप्सी टर्वी in my son's language. It was little topsy turvy, मतलब उल्टा पुल्टा था with my son, because somewhere मुझे ऐसा लगा कि हमने वो व्हील ऑफ चॉइस बनाया है जिसमें मैंने अपने बच्चे को बताया है कि हाउ टू मैनेज द एंगर एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक हम लोग ना 3 महीने के ऊपर हो गए कि हमने उसको रिविजिट नहीं किया. सो एज अ मदर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली दैट मेरे बच्चे को इतना गुस्सा आ रहा है एंड मेरा बच्चा इज नॉट even came to hit me. My kid also comes, he's 5, sometimes when he's very angry, he comes and he's like, I'm going to hit you, I just stand there, I wait, because I know that he's not going to hit me, he's just telling me to show his anger. And sometimes if I see that he is not able to control and he comes and hit me, and when he hits me on my side or on my tummy, because they are very angry, unko samajh nahi aa raha hai, I just calmly uska haath aise pakadti hu and I just push him back and say, I understand you're angry, Zoravar, but hitting, no. We will not hit. Use your words. Okay? Tell me. क्या हुआ है? He's still angry. It's okay. So I keep holding the hands. There is nothing wrong in holding a child's hand. Okay? पकड़ लो हाथ, आराम से पकड़ो, कोई जरूरत नहीं है. अगर आपका बच्चा बहुत ही ऊपर नीचे कर रहा है, लाइक इन द सेंस हाथ इधर जा रहे हैं, किसी और को मार रहा है, पीछे से जाके पकड़ लो. It is okay. It's much better than you getting angry. It is so much better than you losing your control and then you are saying, I am also going to hit you. मैं देखती हूँ तुम कैसे मारते हो मुझे, तुम मार के दिखाओ मुझे. तो ये रिएक्शन में ना उसका फायदा हो रहा है ना आपका फायदा हो रहा है. राइट? तो आप आराम से उसका हाथ पकड़िए और आप बोलते रहिए, हिटिंग, आई कैन नॉट अलाउ यू टू हिट मी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू हिट मी. आपको गुस्सा आ रहा है, अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट हिट मी. और जब तक आपका बच्चा थोड़ा काम डाउन ना, उसका हाथ पकड़ लो. There is nothing wrong in holding the hand. It is 100 times better than slapping your kid or pushing your kid away. ठीक है? So, having said that, okay, sorry, यहाँ पे मेरे को थोड़ा adjustment करना पड़ेगा. हाँ. So, Rakshita, I hope I answered your question. And darling, अभी तो शुरुआत है, आगे आके देखिए. I'm not trying to scare you, but this is a fact. Your child is going to just 10 months old. Enjoy this time, okay? Because अभी मुझे ऐसा लगता है कि I really look back and I'm like, oh God, my child was so cute, it was so easy at that time. So every stage in parenting, you feel this is the toughest. नहीं, अभी बचता है somehow. I always say this. जिस दिन मुझे लाइव करना होता है उस दिन मेरे फोन जरूर बजते, for some reason or the other. Okay, now let's go back to questions. Okay, can you send me the questions please now? खाना नहीं खाता मेरा बेबी. If you're coming for the first time for my life, so whenever you have a question, please अपने बच्चे की एज लिखिए. प्लीज अपने बच्चे का लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है. If I am able to help, I'll reply to you. Okay? ये किसी ने मेरे से सिबलिंग राइवलरी कह रहा, मेरे बच्चा आपस में लड़ते हैं. मेरी बड़ी 9 की है और बेटा 3 का है. आपका एज डिफरेंस काफी है बच्चों में. सिबलिंग राइवलरी आई विल टेक इट अप नेक्स्ट वीक, वेयर हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चे लड़ते हैं तो क्यों लड़ते हैं, क्या रीजन होता है कि एल्डर वन को हमेशा ये लगता है कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट एनफ. Sibling rivalry is good also in a lot of ways, okay? It teaches a child a lot of things. A single child and a child who has a brother or a sister, you will always see a difference, okay? So it is good in a way because वो उनको काफी skills सिखाते हैं. But as a parent हमें कभी-कभी मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हम एक होता है फोर्स्ड रिलेशनशिप कि हमें लगता है कि अगर 2 लोग इकट्ठे हैं ना, दे शुड लव ईच अदर, लाइक बस क्योंकि आप दोनों इकट्ठे हो तो यू हैव टू लव योर सिस्टर और योर ब्रदर. ओके, फॉरगेटिंग कि दे आर इंडिविजुअल्स, फॉरगेटिंग
that I cannot force two people to love each other. I can teach each other to respect each other for sure. I can teach them how to take care of each other. बट मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती एक दूसरे को प्यार करने के लिए. सो माई रोल एज अ पेरेंट इज मोर लाइक अ मॉडरेटर. मॉडरेटर मतलब कि सिर्फ मैं दोनों को सिखा सकती हूँ, टीच कर सकती हूँ. अगर मैं इम्पोज करने पे आऊंगी ना कि तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, तुम्हारा भाई है, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, इट विल ऑलवेज बैकफायर. ओके, सो सिबलिंग राइवलरी में डिटेल में नेक्स्ट वीक बात करेंगे, ठीक है. सो प्लीज होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस. Dipti ji, I am not going to answer that because I think anything to do with that has doctors or anything to do with the health, I strongly recommend, please don't ask me. I am not a certified doctor to answer such questions. I can only talk about parenting. I can only talk about positive discipline. I can only talk about conscious parenting because that is what I have learned. That is what I have followed. So anything to do with your child's health, please, I request you go and check with your pediatrician. I get so many questions regarding मेरे बच्चे का weight नहीं बढ़ रहा है, मेरे बच्चे की height नहीं बढ़ रही है. Honestly, I always say go and check with your doctor if your child's height is okay or not. हर माँ को लगता है मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है. मैं अभी कितनी, मैं 40 की हो गई हूँ. मेरी मम्मी को आज भी लगता होगा कि तुमने एक ही रोटी खाई है, बस एक ही, इतना कम खा के क्या मिलेगा तुमको. होता है ना. आपकी मम्मी भी आज तक आपको ऐसी बोलती होगी, तुमने सिर्फ आज 2 ही रोटी खाई है, एक ही खानी है, एक और खा लो. तो आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, यू विल ऑलवेज फील दैट योर चाइल्ड डजंट ईट. थैंक यू. दैट योर चाइल्ड डजंट ईट. ओके, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम अभी भी. तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. सो आई ऑलवेज से इफ यू फील दैट योर चाइल्ड इज अंडर वेट, इफ यू फील दैट योर चाइल्ड इज not tall enough, please go and check with your pediatrician. Like, though you guys have not seen Zorawar face, but if you have noticed my stories, then you will see he is very lean. मतलब वो बहुत पतला है. I have never had a problem with him कि वो underweight है कि नहीं. I just every time I go to the doctor, I just ask him, is his weight okay? Underweight तो नहीं है. And my doctor always says he is fine. So वो डॉक्टर का एक बार ठप्पा लग गया ना, he is fine, that means he is fine. I am not going to compare my child with another child. Simple. Okay, my child eats जितना उसके पेट में जगह है उतना ही eats. हाँ, but I am teaching my child now not to waste. That is another thing I have taken up, that he is wasting a lot of food. So I am teaching him कि उतना ही लो जितना खा सकते हो. ठीक है. So to all of you who have the question of sibling rivalry, I'm not going to answer, darling, because then for next week क्या बचेगा. So I'm just going to honor this. So next week आ जाना पक्का. So next week I'm going to talk about sibling rivalry only, and I'm going to give you some tips. Okay, why it is good, why what is the role of a parent in that. What does a child feel. सब कुछ बताऊंगी आपको मैं next week. कोई क्वेश्चन ही नहीं आज, बताओ है या क्वेश्चंस है और मुझे दिख नहीं रहे. मेरी क्वेश्चंस वाले में डाल दीजिए क्वेश्चंस प्लीज. आई अगेन रिक्वेस्ट यू, राइट नीचे राइट में यू विल सी क्वेश्चन मार्क. उसमें आप क्वेश्चन डाल दोगे तो आई एम गोना आंसर इट. वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो वहां रहते हैं. एंड आई कैन टेक इट वन बाय वन. सो ऑल दोज हु हैव अ क्वेश्चन अराउंड पेरेंटिंग, अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग, प्लीज पुट इट देयर. Just listening the word school, he gets fear. He just wants to be with mama. Again, what is the age of your child? And what is... see, if your child is like 2 years, 3 years, you want to send your child, अगर आप उसको डालना चाहते हो प्ले ग्रुप में, it takes time. Okay? It takes time. आप ये समझो, it's like this. Fez Mashu. Okay? When I am hoping, अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जब शादी हुई, फैज मशू, आई एम होपिंग यूर अ गर्ल, सो आई एम गोना टॉक लाइक दैट. ठीक है, कि जब आपकी शादी हुई, ठीक है, आपको एंग्जाइटी नहीं थी कि नए घर में क्या होगा? आपको एंग्जाइटी नहीं थी कि बाहर जाके क्या होगा, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ? आपको ये नहीं लग रहा था? खुशी तो थी कि शादी हो रही है, बट वो एंग्जाइटी तो होती है ना, वो डर तो होता है कि मतलब मैं अपने सेफ स्पेस छोड़ के कहीं और जा रही हूँ. मैं अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं और अब मैं कहीं और जा रही हूँ.
कैन ऑल द वुमेन रिलेट टू इट? जितना सेफ आप शादी से पहले अपने घर में फील करते थे, यू नो, क्या इमीडिएटली जाके ससुराल में भी यू स्टार्टेड फीलिंग द सेम? आंसर मी, चलो, टू ऑल द वुमेन हियर, ओके। जब आपकी शादी हुई थी, डिड यू नेवर हैड दिस फीलिंग कि हाउ एम आई गोइंग टू गो एंड एडजस्ट, हाउ क्या होगा, लोग कैसे होंगे, यू नो, हाउ विल आई मैनेज? एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अबव 20 ओनली व्हेन यू गॉट मैरिड. So what was your feeling? Were you okay going to a new place, or were you little scared of leaving your safe space, like your parents, your house, where you know you can be who you are? ठीक है. Mansi says, I still feel anxious. Because if you honestly ask me, for a child, it takes time. Okay. Now, Faiz Mashu, okay, he was happy before and 2 days he went happily. See, again, I don't know how old is your child. अगर आपका बच्चा, मैं वही बोलती हूँ, प्लीज हमेशा हमेशा बच्चे का एज लिखिए. अगर आपका बच्चा 7 साल का है और ये कर रहा है, माई एडवाइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर आपका बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का है, उसके पीछे रीजन अलग है. उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल होते हैं, विच इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी, जो मैं अभी आपको ये मैरिज वाले से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें एज एन अडल्ट भी सेपरेशन एंजाइटी होती है. ओके, 3.8 ईयर्स. ओके, हमें एज अ अडल्ट भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, स्पेशली इफ आई हैव टू डू समथिंग न्यू. आपका बच्चा तो अभी 4 साल का है, हो सकता है वो पहले कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो पहली बार स्कूल जा रहा है. व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग? अब ये तो मत एक्सपेक्ट करिए ना कि 4 साल का बच्चा, मैं उसको पहले दिन स्कूल ले जाऊंगी, हाँ ही इज गोइंग टू बी फाइन. सम किड्स आर फाइन फॉर फर्स्ट 1 वीक. यू नो व्हाई? बिकॉज उनको फर्स्ट 1 वीक में दे सी लॉट ऑफ न्यू किड्स, दे सी लॉट ऑफ न्यू टॉयज, उनको मजा आता है, न्यू गेम्स है, न्यू ये है. लेकिन जब वो न्यूनेस खत्म हो जाती है ना, वो नई चीजें, व्हेन इट बिकम्स अ रूटीन, यू नो, देन इज व्हेन दे रियलाइज कि नहीं यार, घर ही बेटर था. Then the separation anxiety sets in. ठीक है? So your child needs your support in adjusting. Okay? Your child needs your support in adjusting in school. अब हम वो कैसे करेंगे? हम टीचर्स के साथ बैठ के बात करेंगे और हम बोलेंगे, अच्छा आप बताओ मुझे घर में क्या करना है, कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रिपेयर करूं जाने के लिए. इफ योर चाइल्ड इज ऑलमोस्ट 4 years of age, then you will understand कि they can talk also. So you can indirectly or directly ask them, अच्छा स्कूल में क्या हुआ, अच्छा किसी ने कुछ बोला, हो सकता है स्कूल में किसी ने उसको हिट कर दिया और इसकी वजह से वो वापस स्कूल नहीं जाना चाहता है. ठीक है? सो आई ऑलवेज से सम थिंग्स आर नेगोशिएबल, सम थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल. सो जो कोई ऐसा दिन होता है दैट माई चाइल्ड सेज मेरे को स्कूल नहीं जाना है, आंसर बहुत सिंपल है, स्कूल तो जाना है, दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल. ठीक है? जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा रो रहा है, मैं उसको स्कूल नहीं भेजूंगी इज नॉट एन आंसर, नॉट एटलीस्ट माई आंसर. ठीक है? एज अ मदर आई नो व्हेन ही इज जेन्युइनली सिक, एज अ मदर व्हेन आई फील, आई नो जेन्युइनली ही नीड्स अ ब्रेक. बिकॉज एज एन अडल्ट कभी कभी हमारा भी मन नहीं करता यार, हमारा भी करता है यार, नहीं हो रहा, मतलब आज ब्रेक चाहिए. ठीक है? बच्चों को भी करता है, बट स्कूल तो जाना है. जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड समथिंग हैज हैपेंड, दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल. ठीक है? स्कूल तो जाना है आपको. ठीक है? बट कैसे जाना है? या तो आप मुझे प्रॉब्लम बता दो एंड आई विल हेल्प यू सॉल्व इट विद द टीचर, और यू कैन क्राई एंड यू नो देन यू कैन फाइंड योर ओन वे ऑफ डीलिंग विद इट, और यू नो यू कैन गो हैप्पीली. सो यू टेल मी हाउ यू वांट टू गो, बिकॉज स्कूल जाना है तो दैट पार्ट इज डन. स्कूल तो हम जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू मत बच्चा. ठीक है? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड, हाउ कैन आई हेल्प यू बच्चा, व्हाट कैन आई डू. Okay, आपको can you go and sit outside for some time, you know, and then maybe, you know, sit there for 2 days, then don't be there for 1 day. So schools have lot of permutation combination. You check with the school what they allow. Like when I had to adjust my child, I sat there almost for 15 days. 15 days मैं बैठी थी बाहर, but मैंने स्कूल भी वही चूज किया which will allow me to sit. मैं हमेशा बोलती हूँ, आप स्कूल वो चूज करो जो आपके बच्चे के लिए अच्छा है. नाम के हिसाब से स्कूल मत चूज करो. जस्ट बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स रेटेड बाय सो एंड सो, वी शुड पुट आवर चाइल्ड देयर. चूज अ स्कूल दैट वर्क्स फॉर योर चाइल्ड.
ठीक है, मैंने वो स्कूल इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे आज भी पता है कि मेरे बच्चे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो खुद बोलता है, नाउ ही हैज टू गो टू ग्रेड 1 एंड व्हेन आई आस्क हिम कि बेटा आपको कैसा स्कूल चाहिए, मतलब व्हाट इज इट दैट वी शुड लुक इनटू स्कूल, ही ओनली सेज वन थिंग, मम्मा आई नीड टाइम टू एडजस्ट एंड द टीचर हैज टू गिव मी टाइम। ही इज सो क्लियर इन दैट। So now when I'm shortlisting school, I see more कि teachers कैसे है, instead of facilities कैसी है, उसमें sports कैसा है, उसमें ये कैसा है। वो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। मैं स्पोर्ट्स का करूंगी क्या जब मेरा बच्चा स्कूल में एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब मैंने अपने बच्चे को प्री स्कूल भी भेजना था, दैट वॉज माई बिगेस्ट टॉप लिस्ट में था कि दैट स्कूल शुड अलाउ मी टू हैव दैट सेटल इन पीरियड, क्योंकि तब कोविड खत्म ही हुआ था एंड कोई स्कूल अलाउ नहीं कर रहा था कि आप बाहर बैठ भी सकते हो। बट मैंने स्कूल ढूंढ के आई फाउंड अ स्कूल वेयर दे सेड, इनफैक्ट दे सेड कि मैम यू हैव टू sit here, the parent has to sit here till the time the child is not comfortable, and I thought that was it for me. मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, महीना लगता है एडजस्ट होने में, I will sit for महीना, but I was very clear that this is a school I want my child for. करिकुलम क्या करेगा कोई बात नहीं, पढ़ा तो मैं उसको घर पे भी लूंगी, ठीक है, बट अगर मेरा बच्चा हैप्पी नहीं है स्कूल जाने में, I will not put him. So फैज माशू, आप चेक करो कि आपका स्कूल क्या प्रोवाइड कर सकता है, आप अपने बच्चे को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, नहीं तो ये रोज चलता रहेगा। एंड ये चीज भी आपको मैं फैक्ट बता दूं, एक बच्चे के ना ऐसे फेजेस होते हैं, आप किसी भी मदर से पूछ लो, किसी भी, ठीक है, some days they want to go to school, then suddenly they don't want to go to school, then they will come back and they want to go to school, they are happy, then they don't want to go to school, then they will come back and say I want to go to school. क्यों होता है पता है? स्कूल में कोई इंसिडेंट हो गया, टीचर ने कुछ बोल दिया, किसी बच्चे ने कोई कमेंट मार दिया, किसी बच्चे ने हिट कर दिया, सो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है। कुछ चीजें वो बता पाते, कुछ चीजें वो भूल जाते, बट उसकी फीलिंग रह जाती है, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन विद योर चाइल्ड। आप ये मत सोचो कि मेरा बच्चा अभी 3.5 साल का है एंड इज रेडी फॉर द वर्ल्ड। नहीं यार, हमें उसको रेडी करना है, हमें उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। हम एज अ पेरेंट धीरे धीरे करके रस्सी छोड़ेंगे ऑफ इंडिपेंडेंस, बट हमें प्रोटेक्ट करके रखना है उनको जब तक हम कर सकते हैं। सडनली एक्सपेक्ट करें कि जाओ चले जाओ और कर लो बिकॉज और बच्चे कर सकते हैं, डजंट मीन कि मेरा बच्चा भी कर सकता है। मे बी मेरा बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, वो कर लेगा व्हेन द टाइम इज राइट, ठीक है। फैज, आई होप इट हेल्प यू। गो चेक विद द टीचर कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज योर टारगेट इज क्लियर। मैंने अपना बच्चा एडजस्ट कराना है, कैसे कराना है बताओ, चलो कितने, कैन आई सिट हियर, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। द टीचर देमसेल्फ, इफ इट्स अ गुड स्कूल, टीचर खुद ही आपको सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस, ओ माय गॉड, आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पीपल हैव रिटन इट अंडर क्वेश्चंस। नाउ आई कैन रीड वन बाय वन एंड राइट इट, ओके। मेरी बेटी 7 years की है और आजकल बहुत एंग्री रहती है और अपने सिबलिंग को बहुत एंग्री करती है। सो कमीनी केसरी, ओ आई वॉज लाइक कि मैं सही पढ़ भी रही हूँ कि नहीं। ओके मैम, फाइन। सो इट इज अबाउट द क्वेश्चन अबाउट 7-year-old जो एकदम से गुस्सा दिखा रहा है। फाइन, नाउ आर यू स्टिल देयर? लेट मी नो, से अ हाई देन ओनली, अदरवाइज मैं पता चला मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, आप लाइफ पे है ही नहीं। सो इफ यू आर देयर स्टिल देयर, पुट अ हाई, ओके। कमीनी केसरी, ओके, एक्चुअली मुझे लगा मैं गलत पढ़ रही हूँ ऑनेस्टली, ओके। सो देखिए, अगर 7 साल में ना एक रील आएगी अगले 1-2, आई थिंक नेक्स्ट वीक अबाउट 7 years, ठीक है, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 7 years इज अ एज, ओके, इन विच lot of things change. It's like a developmental milestone for a child. That's why हम जब चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं या फिर हम बच्चों के बारे में भी पढ़ते हैं, we divide the entire childhood into certain parts, which is 0 to 3, 3 to 6, फिर 6.5 या 7 या 3 to 7 भी कर सकते हो, 3 to 7, 7 to 12 and then 13+. हम ये लोग क्यों डिवाइड करते हैं पता है? बिकॉज हर एज इज डिफरेंट। हर एज में देर इज अ ह्यूज चेंज इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली भी होता है, बट फिजिकली इतना दिखता नहीं है। फिजिकली आपको टीन्स में जाके दिखता है, ओके, बट इमोशनली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आपका बच्चा 7 साल का होता है ना,
एक दे हैव गॉन इनटू अ न्यू स्कूल, मतलब दे हैव गॉन इनटू ग्रेड 1 ग्रेड 2, ओके, दे बिकम, उनको उनके फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग जाते हैं। सडनली इमोशंस भर जाते हैं। इमोशंस उनको पहले भी पता होते थे जब वो 4-5 साल के थे या 6 साल के थे, बट वो इतने कॉन्शियस नहीं थे उन इमोशंस को लेके। मतलब कि गुस्सा उनको तब भी आता था, बट तब उनको ये शेम गिल्ट इतना हाई लेवल का नहीं होता था। तब उनको इतना नहीं होता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तब उनको इतना कंपैरिजन नहीं होता था फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, ओके। 7 के बाद दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन आइडेंटिटी। हम बोलते हैं ना, आइडेंटिटी बिल्डिंग कब शुरू होती है? बचपन से शुरू हो जाती है। However, by the time they reach 7, they actually start forming a lot of opinions which stay with them for a long time and sometimes never get changed also, okay? Because दो लड़कियां खेल रही है, दोनों 7 साल की है। किसी ने आके इसको बोल दिया, ये पहली लड़की को बोल दिया, अरे तुम इतनी पतली क्यों? वो बोल के बंदा चले गया, ठीक है। या दूसरी वाली वहां खड़ी है, या फिर उसने आके बोल दिया, अरे तुम अपनी फ्रेंड से, विच इज दिस फ्रेंड से सीखो, ये कितनी पतली है, कितनी सुंदर है ना, तुम भी सीखो कुछ। वो जिसने बोलना था वो बोल के चले गया ये 7 साल की लड़की को। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, 7 ईयर्स के बाद जब आप ऐसे कमेंट बच्चे को मारते हो, ये 7 साल की बच्ची उसको लेके इतना सोचेगी एंड विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट हर सेल्फ। Maybe what that person is saying is right. Maybe I am not good enough. Maybe वो मुझे कंपेयर करना है तो मुझे कुछ करना चाहिए। बिकॉज अगर आप यही कमेंट ना आप एक 4 साल की लड़की को बोलोगे ना, शी माइट जस्ट ब्रश इट ऑफ, या उसको आधी बात समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन 7 years इज अ एज वेयर द चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस, ठीक है। उनके फ्रेंड्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दे विल स्टार्ट रिबेलिंग यू अ लिटिल बिट मोर बिकॉज दे वॉन्ट देयर पावर। उससे पहले they will be listening to everything that you are saying, but now because they craving that independence, they want little bit more of that independence and they want trust from you. Are you with me on this? Okay, so if your 7-year-old is suddenly becoming angry, I want you to do just one thing for 1 week, okay? मैं चाहती हूँ आप जाओ और आप उसकी बातें सुनना शुरू करो without judgment. Without any judgment, go and start listening to her, okay? Go and start listening to what she is saying. That's it. उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे as to what is she feeling. When I say listening is, don't interrupt, don't judge, don't clarify, okay? Don't say नहीं बेटा उसका वो मतलब नहीं था, कुछ भी मत बोलो, just listen, okay? And listen करने के बाद is when you will come back and tell me what happened, because you will then have pain points कि देखो स्कूल में ये हुआ, घर में ये हुआ, जिसकी वजह से उसने ये ओपिनियन फॉर्म कर ली है और उसका गुस्सा अब इधर निकल के आ रहा है, उसका गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा है या अपने भाई के ऊपर आ रहा है, ठीक है, या सिबलिंग, आपने लिखा नहीं भाई है कि बहन है, बट हाँ सिबलिंग के ऊपर आ रहा है। What your 7-year-old need right now is for you to listen. So first listen. Second, understand her friends are becoming more important, social circle is becoming more important, and I need to start trusting her more and giving her little bit more independence. When I say independence, I do not mean that your child can go wherever they want. That is up to you, what kind of independence you want to do. When I say independence, that means giving your child chota power to decide things, okay? कि क्या करना है, कितने बजे करना है, कैसे करना है, trusting them, giving them, saying that I trust you, if you're going to somebody's house, then you're going to be respectful. So it is that, okay? So do that. You will see a difference in her, and be prepared that your child will rebel जब तक उसको ऐसा नहीं लगता, sorry, be prepared that your child will rebel अगर उसको लग रहा है कि आप उसको नहीं समझ रहे हो। एंड अगर आपने अब उसको नहीं समझा तो टीन में जाके इट विल बिकम 3-4 times मोर, क्योंकि अगर आप उसकी अभी से उसको नहीं समझ रहे हो, उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, ठीक है, और उसको हर चीज में उसको डिक्टेट कर रहे हो, जब वो टीन्स में जाएगी, जब तक उसने अपने बारे में पूरा ओपिनियन बना ही लिया है, तो उसका रेबल आपके अगेंस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई क्रॉस दिस? आई होप दैट वाज लिटिल हेल्पफुल, ओके।
I am not taking any questions regarding sibling rivalry. I will take it next time. Half of your questions will be done. ठीक है? Okay, there is one question here. What if a 5-year-old kids fight with each other? How parents should react? If girl parents are more protective, my son not always at fault, but you know girl parents become protective. How should one react? Okay. I think more than a girl parent or a boy parent, it becomes more like all the parents are very protective. Okay. Some parents have the sense बोलो or have the maturity to understand कि जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा हर टाइम करेक्ट होता है. has a maturity to understand कि दूसरा बच्चा भी is a kid only. Okay, so when two kids are fighting with each other and especially at an age of 5, okay, I always say you don't have to go and interfere all the time unless it's a physical fight. ओके एक बच्चा कह रहा है मुझे ये कार चाहिए, दूसरा बच्चा कह रहा है मैं नहीं दूंगा. ओके यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो एंड से नहीं उसको दे दो, उसको अच्छा लगेगा, वो 5 साल का हो गया, चाइल्ड इज लिटिल मैच्योर्ड इनफ राइट नाउ. ओके नहीं उसको दे दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तुम इसको दे दो, तुम उसको दे दो. ट्राई सेइंग थिंग्स लाइक ओके आई सी यू वांट अ कार, आई सी दिस इज योर कार, मुझे दिख रहा है ये आपकी कार है, मुझे दिख रहा है इसको ये कार चाहिए. अभी देखते हैं कि ये कार हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को. लेट देम कम अप विद द सोल्यूशन. ओके समटाइम्स यू हैव टू लेट देम टेल व्हाट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज. If you still think, if they are siblings or if they are friends who are not matured enough to find an answer to it, you can always take the car and say, I don't think that you are right now ready to play with the car, both of you. So you take the car and you say, I'm going to keep it up. आप दोनों find a solution for it and tell me कि किसको देना है. This works for sibling also, very honestly. Okay. So Nami Saxena, I will say that it's not about girls and boys. I know parents who are always thinking that you know कि मेरा बच्चा कुछ गलत कर ही नहीं सकता है. Okay, they are called this over possessive parents. इनको लगता है कि मेरा बच्चा ये हमेशा करेक्ट है. You are not helping your kid if you are that kind of a parent. You know why? Because आपको अपने बच्चे को आप सुधारने से ज्यादा आप अपने बच्चे को ग्रो कैसे करने दोगे जब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसका एरिया ऑफ ग्रोथ कहाँ पे है. अगर कोई मेरे को आके जोरावर के बारे में कुछ बताता है कि जोरावर ने स्कूल में ये किया या फिर जोरावर ने किसी के घर में ये किया या जोरावर मिसबिहेव विद दिस नैनी, उसकी नैनी के साथ, यू नो, आई टेक इट विद फुल स्ट्राइड. बिकॉज मुझे नहीं पता मेरा बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है. अगर किसी ने बाहर से आके मुझे बताया है कि मेरा बच्चे ने ये किया, आई थिंक आई वुड बी ग्रेटफुल बिकॉज आई नो दैट पर्सन genuinely cares about my son. And most importantly, it gives me a chance to work with my child. Okay, so I always tell parents, please don't go in a defensive mode if someone is saying something about your child. हाँ, of course हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. लेकिन अगर कोई आपको आपके बच्चे के बारे में कोई फीडबैक दे रहा है, so please take it with a pinch of salt and then calmly reply to them, calmly go to your child and figure out इसका सोल्यूशन क्या है. कोई इंसान जबरदस्ती आके आपके बच्चे को पिन पॉइंट नहीं करेगा. ठीक है, मैं आपके बारे में केयर करती हूँ तभी मैं बोलूंगी. कोई तीसरे का बच्चा होगा, मैं नहीं बोलूंगी आपको. राइट, आप अगर किसी बच्चे के बारे में केयर करते हैं तभी आप बोलोगे. कोई सड़क पे चलते हुए इंसान के बारे में आप नहीं बोलोगे. तो कोई अगर आके मुझे जोरावर के बारे में कुछ बोल रहा है तो आई विल एक्चुअली थैंक देम बिकॉज दैट शोज दैट जोरावर इज इम्पोर्टेंट टू दैट पर्सन और आई एम इम्पोर्टेंट टू दैट पर्सन कि उसने आके मुझे ये बात बताई. ठीक है, सो नमी सक्सेना, आई अंडरस्टैंड दैट यू फील कि योर चाइल्ड इज गेटिंग, यू नो, हमेशा द अदर चाइल्ड इज के पेरेंट्स आर ब्लेमिंग योर चाइल्ड ऑन इट. देन आई विल से जस्ट स्टैंड अप फॉर योर चाइल्ड एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग. दे आर 5-year-old. Let them figure out their own problems. If they cannot figure out the problem, वो जो प्रॉब्लम का रीजन है ना, वो टॉय, वो चीज, उसको उठा लीजिए. ओके, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जैसे आपने अपने कमेंट्स में लिखा था, मैं पढ़ रही थी कि द अदर चाइल्ड क्राइज अ लॉट फॉर द थिंग्स. ओके, ये जोरावर के साथ भी होता है कि जोरावर डू नॉट शेयर हिज टॉयज इजीली.
He will not share his toys easily, especially his toys that he loves, especially those small cars. Okay. Now अगर उसका कोई फ्रेंड आया है, अगर मैंने दोनों को बोला है यू पिक अप योर कार, उसके फ्रेंड ने एक कार उठा ली, जोरावर ने एक कार उठा ली, 10 मिनट के बाद उसके फ्रेंड को डिसाइड हुआ कि मेरे को ये कार नहीं चाहिए, उसने बोला मुझे वही कार चाहिए जो जोरावर को चाहिए. ठीक है. Now if you ask me, from my eyes, I gave both of them the opportunity to decide कि भैया तुम कार ले लो. उसके फ्रेंड ने खुद डिसाइड किया उसको वो कार चाहिए. अब अगर उसको जोरावर की कार चाहिए, I have no right to tell him कि तुम अपनी कार उसको दे दो. It is his decision. So I as a parent never force him. I always ask him, would you like to give your car? If his answer is no, I just stand by him and I'm like, okay, fine. Because my child has made a decision. The other child has also made a decision. Right? If Zoravar is like, nahi mama, and if I see that other child is crying a lot, I'll again ask him, beta, do you want to give it, please? Then he's like, no mama, he decided, no, I can also decide. And I think that's the time we need to set boundaries. Because अगर मैं उसकी wishes को या उसके decisions को respect नहीं करूंगी, तो वो मेरे decisions को, when I take decisions, उसको respect नहीं करेगा. जो हम boundaries set करेंगे उसको respect नहीं करेगा. So I don't know if I've answered your question or not, Nami Saxena, but I have really tried. So let me go to the next one. Where are the questions? Okay. Oh, this this is little touchy point. I'll tell you. I'll take this topic up because ये मेरे साथ last week हुआ है. आप बोलेंगे दिव्या तुम्हें क्या वो सारे क्वेश्चन ले रही हूँ. मेरा लास्ट वीक थोड़ा इतना बड़ा इवेंटफुल था एक्चुअली, इसीलिए. सो आई टेक दिस टॉपिक. ओके. सो मेरा बेटा टैंट्रम में गुस्से में आके गाली देता है, तो मैं क्या करूं उसके रिएक्शन में. मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया पता है? मैंने बोला ना लास्ट वीक से जोरावर का वोकैबुलरी हैज चेंज. ही हैज स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स विच आई पर्सनली डोंट लाइक. ओके. जो हमारे घर में नहीं चलते हैं, एंड उससे मैं ट्रिगर होती हूँ बहुत जल्दी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि उसको आधा टाइम उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता होता. तो मैंने एक बार उसको बोला, जोरावर वी डोंट टॉक दिस, लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड, और आई गेव हिम एन ऑल्टरनेट वर्ड. ओके. देन अगेन ही यूज दिस वर्ड. ओके. देन आई टोल्ड हिम, बेटा डू यू नो व्हाट डज इट मीन ऑल्सो? ही सेड नो. एंड वो भी गुस्से में बोलता है. ठीक है. बच्चे जनरली जब गुस्से में आते हैं, they say things that they don't mean. So stop taking it personally. First. However, we have to teach our child कि you cannot hit when you're angry. You should not use words, hurtful words when you're angry. इसको हम बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन. अगर आप पॉजिटिव डिसिप्लिन या पॉजिटिव पेरेंटिंग या कोई भी रेस्पेक्टफुल पेरेंटिंग को कहीं पे भी फॉलो करते होंगे, आप देखते होंगे कि सब लोग ये बोलते हैं यू नीड टू टीच योर चाइल्ड टू रेगुलेट देयर इमोशंस. आप में से कितने लोग यहाँ पे जिनको रेगुलेट इमोशंस का मतलब पता है? टेल मी. आप में से कितने लोग यहाँ पे है जिनको ये पता है कि व्हाट डू आई मीन एज अ पेरेंटिंग कोच और educator telling you teach your child how to regulate their emotions. So if I say this to you, what do you understand? Tell me. मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मेरे को 2 मिनट चाय पीनी थी. मैंने कहा आप आंसर लिखे, मैं देखती हूँ. सो मैं ये क्वेश्चन का पूरा आंसर दूंगी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे. बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन आई से टीच योर चाइल्ड हाउ टू रेगुलेट इमोशंस? मैम प्लीज हिंदी में बताइए. यार मैं दोनों हिंदी इंग्लिश में मिक्स करती हूँ. कंट्रोल देयर इमोशंस. ओके. व्हाट एल्स? नो मैम. ओके. ओके. थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट नेहा. थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. बिकॉज एक पॉइंट पे मुझे भी नहीं पता था कि यार ये क्या है रेगुलेट इमोशन. रेगुलेट इमोशन मतलब यार है तो हम देसी एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार हूँ तो मैं ऐसी. ठीक है. थोड़ा मतलब ये सब इंग्लिश से आ जाते हैं तो, लेकिन मुझे उसको ना फिर ब्रेक डाउन करके अपनी लैंग्वेज में समझना पड़ता है. ठीक है. एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू मीन हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस? यस. ओके. means how to handle to or respond to an emotion. Now this is what it is bang on. How to handle and respond to a emotion. Regulate emotion means कोई भी चीज को रेगुलेट करना क्या होता है? मतलब उसको हमने
जैसे एक चीज होती है ना, हम ऐसे फैल गई है पूरी, टिक 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 टिक। एक होता है रेगुलेट, मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ नेविगेट अ वे, नेविगेट अ वे, ठीक है। एक हो गया बम आया फुट गया, बम फुटा तो चिंगारी हर तरफ गई, ओके। एंड व्हेन दैट बम ब्लास्ट हैपेंस एवरीथिंग गोज एवरीवेयर, ठीक है। एक होता है रेगुलेट, मतलब आई एम टीचिंग माई चाइल्ड डार्लिंग, इफ यू आर फीलिंग दिस वे, these are the steps that you can do. Why I say steps? Steps is because I need to tell my child I also feel angry, okay. What steps do I take to feel calm? I have to teach my child to do those steps so that step by step वो जो बम ब्लास्ट हो रहा है वो बम ना ब्लास्ट होके it goes into a river, it goes, रिवर बोलो या उसको बोलो, it goes straight, मतलब एक नहर जैसा बन जाए, so that the child knows these are the steps I can do to react better. Did you understand what I'm trying to say? So when I say regulate emotions, that means that आप में से मैं कितने लोगों से यह पूछ लूं, स्पेशली मदर्स फादर्स भी, ओके, यू माइट बी इन योर 20s 30s 40s, मेरे को कभी नहीं किसी ने बोला कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप ये कर लिया करो, until I got into life coaching and I started discovering myself. मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि जब आपको एंशियस होते हो, एंजाइटी आती है, आप 1 2 3 4 ये स्टेप कर लिया करो। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि इट इज नॉर्मल कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू विल हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। कोई बोल देता था हाँ इट्स नॉर्मल यार, इंटरव्यू से पहले तो एंजाइटी होती है, बट वो एंजाइटी का करना क्या है मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। आपको बताया किसी ने बचपन में कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आप क्या करो, अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप क्या करो, क्या कहते हो, स्टेट क्या होती है, यू नो स्टेट इन द सेंस कि सडनली इफ यू आर लो एंड यू जस्ट वांट टू स्विच इनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी, लाइक इफ यू जस्ट वांट टू गेट योर इमोशंस हाई, क्या करो, नहीं सिखाया ना। थैंक यू क्वेरी मॉम, oh I love your page, I follow you too, okay, and मुझे भी कभी किसी ने नहीं सिखाया। So I think as parents हम लोग बहुत ज्यादा conscious हो रहे हैं that we should teach these skills to our child, okay, क्योंकि हमें नहीं सिखाया, हमें लगता है हम बच्चे को कैसे सिखाएं, राइट। जब मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, जो अभी मैंने अभी बताया, अगर आप मेरे लाइव में स्टार्टिंग से है, जो मेरा लास्ट वीक गया, वेयर आई रियलाइज कि मैंने उसके लिए वो व्हील ऑफ चार्ट तो बना लिया है जो मैंने आपको सिखाया है इन वन ऑफ माई लाइव्स, ठीक है। मैंने व्हील ऑफ चार्ट बना लिया, वी डिस्कस्ड अगर आपको गुस्सा आएगा तो हम ये करेंगे, बट इट इज ओवर 3 to 6 months के हमने वो व्हील ऑफ चार्ट कभी यूज ही नहीं किया, तो मेरा बच्चा भी भूल गया, क्योंकि एनीथिंग आई डू इज प्रैक्टिस। अभी मुझे मसल बनाने है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, एक बार थोड़ी डंबल उठा के मैं मसल बना लूंगी अपना, करेक्ट। सो आई रियलाइज इट वॉज समवेयर माई फॉल्ट एज अ पेरेंट कि मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं कराया अगेन एंड अगेन कि अगर तेरे को गुस्सा आ रहा है दिस इज वॉट यू नीड टू डू, ओके। सो वॉट डिड आई डू, मैंने निकाली वो सारी बुक्स, वो हिटिंग स्क्रीमिंग एंग्री वाली बुक्स जो हमारे पास पड़ी थी, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट बैक टू हिम one book at a time, okay. Now we made another wheel of choice, and trust me, from 6 months वाला wheel of choice और ये वाली wheel of choice में there is a difference, because now he wants to control his anger in a different way. Like we made it fun. We said अगर आपको गुस्सा आता है ना, you can just squeeze your hand like this and then throw it away, you know. So we made different ways of how I can calm myself down, okay. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ, जब बच्चे को गुस्सा आता है उसको रेगुलेट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ अगर आपका बच्चा उस टाइम पे गाली दे रहा है या आपको हिट कर रहा है, हिटिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जस्ट होल्ड देयर हैंड, गाली दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप टेकिंग इट पर्सनली, यू नो। आपको जैसे ही वो गाली देगा आप ट्रिगर हो गए, मैं तो हो जाती हूँ, वेरी ऑनेस्टली मैं सच्ची में बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ, क्योंकि हम बचपन से हमारे घर में कभी कोई गालियां नहीं देता, ठीक है। सो और जैसे ही मुझे लगा ना कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा वो पॉइंट है कि जहाँ पे आके मेरा बच्चा मुझे ऐसे 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 खरोच रहा है, अच्छे से चोट लगी हुई है और बच्चे ने आके खरोचना शुरू कर दिया है, आई एक्चुअली जस्ट टर्न अराउंड एंड गो टू माई काम सेंटर, क्योंकि बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन से पहले खुद भी तो सीखना पड़ेगा कि नहीं, करेक्ट। कि बच्चे को सिखाएंगे कि तुम अपना इमोशनल रेगुलेशन कर लो, मैं करूँ ना करूँ अलग बात है। इज दैट द राइट वे टू डू, टेल मी।
हम सब चाहते हैं मेरा बच्चे को गुस्सा ना आए, मेरे बच्चे को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल हो, मेरा बच्चा हाथ ना उठाए, मेरा बच्चे को अपने इमोशन रेगुलेट करने आए। क्या मुझे आते हैं पहले? एम आई वर्किंग ऑन माई सेल्फ फर्स्ट? आंसर। तब तक हम कॉफी पीते हैं, प्लीज आंसर। सॉरी आई आस्क यू बिकॉज मुझे बीच बीच में कॉफी पीनी है। एब्सोल्युटली मरियम, खुद सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली 210%, यस। I need to work on myself first. I need to work on myself first. अगर मुझे नहीं आ रहे then what right do I have to go and tell my बच्चा कि बेटा do it? इसमें एक और चीज शेयर करती हूँ। मैं बहुत चीजें बता देती हूँ लेकिन आप भी सोचते हो कि इसको मैं फॉलो भी क्यों करती हूँ, लेकिन बता देती हूँ यार, लेट्स बी फ्रैंक, ठीक है। अभी जैसे परसों की बात है, हम बच्चा जाओ जाके हैंड वॉश करके आओ, तुम बाहर से आए हो एंड यू हैव जर्म्स ऑन योर हैंड एंड यू नो लाइक एज अ मदर, एज अ गुड मदर आई सेड वी केम आउट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए, मैंने तो बोला जाओ जाओ हैंड वॉश करके आओ, हैंड वॉश करके आओ, खाना है ये वो करके। वो बेचारा गया, मैं चिल्ला रही हूँ, चिल्ला तो नहीं मतलब बोल रही थी हैंड वॉश करो, एंड वो गया हैंड वॉश करके आया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं सीधा किचन में गई, मैंने खाना बनाना शुरू करा एंड उसको सर्व कर दिया। जब मैं खाना बनाने बैठी ना, मैं 2 मिनट सोचू, मैंने कहा दिव्या क्या तूने हैंड वॉश किया? डू यू रियलाइज मैंने करा ही नहीं। और मैं बहुत बार भूल भी जाती हूँ हैंड वॉश करना, मैं सच्ची भूल जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची भूल जाती हूँ। मैंने कहा यार खुद तो तुम करते नहीं हो, उसके तुम पीछे पड़े रहते हो, जर्म्स लग जाएंगे, जर्म्स लग जाएंगे, जर्म्स लग जाएंगे। जो तुम खाना बना रहे हो उसमें नहीं जर्म्स जाने। सो एज अ मदर आई हैव रियलाइज्ड यू नो इन लास्ट 3 years कि जब तक मैं नहीं कुछ कर रही ना, आई हैव नो राइट टू गो एंड टेल दिस टू माई चाइल्ड कि तुम करो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? जब तक मैं नहीं खुद कर रही, व्हाट राइट डू आई हैव टू टेल यू टू माई चाइल्ड कि तुम करो? मुझे भी तो करना चाहिए ना। सो हमेशा ये बात याद रखना, बच्चे को परफेक्शन की तरफ मत लेके जाइए। मतलब डोंट ट्राई कि माई चाइल्ड हैज टू बी लाइक द परफेक्ट किड। ओके, तुम आप पहले वो चीजें करो, फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करो। इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, इट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो हम लोग भी गलतियां करते हैं, हमें किसी ने नहीं सिखाया है। बच्चे को सिखाना है तो पहले खुद सीखना है। सो इफ यू वांट टू टेक अवे वन थिंग फ्रॉम दिस लाइफ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। Okay, for example, if you are there from the beginning of the life, I said there are few things I'm going to announce next week, you know, and one of them is this only, that I am planning to take a month ka break. Why? Because I need to take care of myself. This last year has been so hectic कि अब वो ना overwhelming stage पे आ गया है, और जब वो overwhelming stage पे आ जाता है मेरे लिए, I don't enjoy it. So take care of yourself. Everything else can wait. Everything else can, पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर आप एक पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, या घर गंदा होगा, या डिशेज नहीं हुए, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चे के साथ आप कैसे रहते हो वो उसको याद रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने आज सुबह किसी से पूछा था, मैं 1-on-1 में। सो दिस मदर सेड कि मैम आई गेट वेरी इरिटेटेड अबाउट थिंग्स एंड यू नो कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, उसका रूटीन है वो फॉलो नहीं करता है, एंड दिस दैट एंड ऑल। सो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई एम गोना आस्क ऑल ऑफ यू। ओके, गो टू योर चाइल्डहुड, क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट and go to your childhood when you were somewhere between 6-7 years of age. Okay, आराम से think about when you were 6-7 years of age. Okay, and remember, do you remember how clean your house was? Do you remember how nice your bed sheets were? Or do you remember playing around? You remember how your mama and papa was? क्या आपको ये याद है कि आपके फ्रेंड्स कौन थे? ठीक है, क्या याद है आपको? साफ सुथरा घर, खाना, या फिर आपको ये याद है कि मम्मा पापा कितना खेलते थे मेरे साथ, या मेरे फ्रेंड्स कौन थे, या हम कहाँ बाहर घूमने जाए? डू यू रिमेम्बर द फीलिंग when you were 6-7 years of age as to how you were made to feel? Or you remember the materialistic things that you had in
including your toys, including your house. Maybe you might be living in a 5-star facilities, you know. I don't know. क्या याद है आपको? फीलिंग्स ही याद है ना ज्यादा? फीलिंग्स ही याद है कि मम्मी ने डांटा, मम्मी ने प्यार किया, मम्मी ने मुझे हक करके स्टोरी सुनाई, या मेरी मॉम मुझे यहाँ लेके जाते थे, है ना? ये तो नहीं याद कि मेरी मम्मी का घर कितना साफ सुथरा रहता था कि एक ऐसे पिन भी गिर जाए ना वो आवाज आती थी। ये मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं याद होता होगा। लेकिन हम मदर्स के लिए दिस बिकम्स लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी समटाइम, कि अगर मेरा घर अगर गंदा हो गया ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब लिटरली बर्तन नहीं धुले, उसको समझ नहीं आ रहा बर्तन नहीं धुल रहे और उसको अब भी मेरे साथ खेलना है। आती है ना ऐसी फीलिंग? मुझे भी आती थी ऑनेस्टली आती थी क्योंकि मेरे को भी सफाई का बहुत वो होता है, ठीक है। तो बट जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि प्रायोरिटाइज क्या करना है, बच्चे को सिर्फ मेरी फीलिंग्स याद रहने वाली है कि मम्मा ने मुझे कितना हक किया, कितना प्यार किया, कितना केयर किया। केयर इन द सेंस ऑफ यू नो सिटिंग देयर लिसनिंग टू मी, केयर इन द सेंस ऑफ कि मेरे साथ खेले कि नहीं, कि मेरी बातें सुनी कि नहीं, कि मुझे मिसअंडरस्टूड तो नहीं किया। ये सब फीलिंग्स याद रहती है। ये टॉयज, ये घर की सफाई, ये बर्तन हुए नहीं हुए, ये सब अडल्टहुड की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनकी नहीं है, उनको नहीं याद रहने वाली है। सो मदर्स प्लीज स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। कुछ नहीं होता, घर गंदा है कोई बात नहीं, कौन सा इतना गंदा है कि आप पाँव नहीं रख सकते हो, है ना? सब कुछ स्पिक एंड स्पैन नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन बेड नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ही दिन नहीं बना ना, दूसरे दिन बना लेना, ठीक है। एक दिन ग्रोसरी करने गए नहीं, कोई बात नहीं। बट उसकी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बच्चे पे ना आए, दे डोंट डिजर्व इट। वो मैं इसको वाटरफॉल इफेक्ट बोलती हूँ कि मेरे को इरिटेशन हो रही है और वो मैं अपने बच्चे पे गिरा रही हूँ। डू यू एग्री? Send a heart if you agree, and send a heart if you no. Send a heart only if for a week you will try to prioritize your kid over everything. Send a heart अगर आप prioritize करेंगे, कोई बात नहीं। ये वीकेंड मेड नहीं आई, थोड़ा घर गंदा है, कोई बात नहीं। ये वीकेंड किसने देखना है? किसने अवार्ड देने आना है आपको? बताओ मुझे। द बेस्ट स्पार्कलिंग क्लीन हाउस इन माई कम्युनिटी इज ऑफ दिव्या। कोई नहीं आता, ऑनेस्टली कोई नहीं आता। आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता मुझे सच्ची नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पड़ता था पहले। माय गॉड, अगर मेरे बेड कवर नहीं बने, अगर मेरे को कोई चीज कोई दिख गई, अगर कोई मेरा ना ऐसे होता था, मेरी अभी भी हूँ, मेरी फ्रेंड्स कॉल मी ओसीडी, बट मुझे ओसीडी नहीं है। जैसे अगर कोई चीज ऐसे टेढ़ी भी पड़ी होती थी ना, जब तक मैंने उसको जाके सीधा नहीं कर देना ना, उफ माय गॉड, मतलब मैं आप तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। पहले मैं वैसी होती थी, मतलब फर्स्ट 2 years ऑफ मी पेरेंटिंग यूज्ड टू बी, वो आपने देखा है इंस्टाग्राम में शेल्फ्स आती है ना, ऐसे दिखाते हैं, ओ हो इतनी सुंदर बनी हुई बच्चों की शेल्फ, ये टॉयज इतने मॉन्टेसरी के, इतने सिर्फ 4 चीजें रखो, पजल्स अलग, ये अलग वो अलग। हाँ, मैं वो मदर थी पहले, ऑनेस्टली। मेरे बच्चे की शेल्फ्स देखने वाली होती थी लिटरली। उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स कहते थे यू शुड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दिव्या, यू हैव सो मच, लाइक द रूम इज लुकिंग सो नाइस, दिस दैट एंड ऑल। रूम वाज लुकिंग नाइस, आई अंडरस्टैंड, बट द स्ट्रेस इनसाइड मी वाज अनदर लेवल ओनली। कि मेरा बच्चा मतलब खेल के पहले बाद में हटता था, सफाई पहले होती थी उसकी। तो मेरे को ये लगता था यार ये क्या है, यू नो, इट इज ओके अगर वो थोड़ी देर पड़ा भी है, इट इज ओके। चलो अपनी बात बहुते हो गई, अब मैं आपका एक, अच्छा लेट मी कॉल समवन इन। ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 12:30, आज टाइम का पता ही नहीं चला। सो आई एम गोना कॉल वन ऑफ यू because last week also I did not call, and one promise I want from you before I call anyone else is you are this week going to spend time with your child, prioritize them. Quirky mom writes, oh my god, this is so relatable, I was the same, but now I say I was a perfectionist then because became a mom and I'm happy with it. Absolutely ये Instagram ने तो ना एक्चुअली आधी चीजें क्या ही बताऊं। When you let go, life is much easier. Okay. कौन आएगा भाई?
किरण जोहला 143, आइए चलो आपको ले आती हूँ। आप रिक्वेस्ट भेजिए। देखो मेरा इसे सेलेक्ट करने का कोई वो नहीं होता है, आई सी whoever इज देयर एंड आई जस्ट गेट इट। किरण जी आपका वो नहीं आ रहा है। दे समवन कॉल इज नेहा मिश्रा, डू यू स्टिल वांट टू कम ऑनलाइन? नेहा लेट मी नो। किरण आपका वो एड पता नहीं, सम प्रॉब्लम, आपका नाम दिख रहा है बट एक्सेप्ट करने का बटन नहीं आ रहा है, उसमें एक्सेप्ट करने का बटन नहीं आ रहा है। सो इज देयर एनी राना ऋतु, रुकिए लेट मी सी इफ आई हैव योर रिक्वेस्ट। राना, वो तेरी ये क्या हो गया, कहाँ गया वो? हाँ, राना ऋतु, राना ऋतु, राना ऋतु जी सेंड मी अ रिक्वेस्ट। आपका रिक्वेस्ट ही नहीं आया है, कैन यू सेंड मी अ रिक्वेस्ट प्लीज? तब तक आप ये बताइए कि डिड यू फाइंड टुडेज लाइव हेल्पफुल? आज ज्यादा बातें हो गई, पता ही नहीं चला एक्चुअली। एंड आपको मैं सच्ची बात बोलूं, ऑनेस्ट कन्फेशन, बिफोर कमिंग टू द लाइव माई एनर्जी लेवल वॉज रियली लो। Okay, that's why I was 5 minutes late. Okay, and being a perfectionist, no, मुझे ऐसा लग रहा था यार 5 मिनट कैसे लेट होगी, 5 मिनट लेट होगी, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट्स ओके। फर्स्ट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अपनी एनर्जी ठीक करनी है, अपने इमोशंस ठीक करने हैं, देन ओनली आई बी एबल टू डिलीवर इट टू यू। अगर मैं वो सैड एनर्जी के साथ आऊंगी ना यहाँ पे, आप भी नहीं सुनोगे मुझे, ठीक है? सेम इज विद योर चिल्ड्रन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि आप हर छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ही खुश नहीं हूं, देन इट इज टाइम कि आप प्लीज टेक अ स्टेप बैक। ओके, टेक अ स्टेप बैक। फर्स्ट अपने आप को देखिए, अपनी खुशी देखिए, फिर जाके बच्चे या फैमिली की हेल्प करने आइए। थैंक यू शिल्पी। ओके ओके, अरे भैया आई एम सॉरी मैम, प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन प्लीज मैम, आई नीड टू मच। फियोना कलेक्शन, वेट यार, फियोना कलेक्शन, नहीं आपका रिक्वेस्ट नहीं आया फियोना, वेयर इज योर क्वेश्चन? फियोना, हाँ सॉरी। बहुत टेंशन होता है, कैसे करूँ, पूरा दिन उसके पीछे ही निकलता है, कैसे करूँ वो पढ़ाई करे? ओके ओके सॉरी फियोना का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो मैम, मेरे ट्विन बॉयज है जो बड़ा सुन पढ़ाई ही नहीं करता है, 7 years ओल्ड में है, सेकंड रिपीट करते तो भी नहीं लिखता है, पढ़ाई का कुछ भी याद ही नहीं रहता है, एग्जाम में भी नहीं लिखता है, उसके साथ बैठती हूँ लिखता है, रीडिंग में भी प्रॉब्लम है। सी फियोना, स्टडी इज समथिंग दैट वेरी ऑनेस्टली वेरी फ्यू किड्स लाइक, इवन जब हम बच्चे थे हमें पसंद नहीं था, ठीक है? आई ऑलवेज से अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना एज अ पेरेंट, देन इंस्टेड ऑफ सीइंग योर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम कि ये नहीं कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं कर रहा है। मैं फिर से बोलती हूँ, इंस्टेड ऑफ सीइंग द चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्यों नहीं कर रहा है। या तो उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, या आपने उसको वर्ड सिखाने शुरू कर दिया, उसका एबीसी भी क्लियर नहीं है अभी तक, या उसको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या उसको वो टीचर पसंद नहीं है, या सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है? वेन यू अंडरस्टैंड द वाई, यू कैन फाइंड बेटर सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, इवन इन पेरेंटिंग, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होना अपने बच्चे के साथ, इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योर चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो सिर्फ एक आउटर लेयर है। अगर वो नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ एक आउटर लेयर है, ठीक है? चलो बच्चों को तो वैसे ही पढ़ना पसंद नहीं है, बट वो आउटर लेयर है, इन द सेंस वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत कुछ है। मे बी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, मे बी वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, मे बी उसके लिए वो उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी उसको लग रहा है कि ये जो मुझे समझा रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है, बिल्कुल बेस ही क्लियर नहीं होता है।
हम उनको सीधा एडिशन सिखा रहे हैं, हमने उनको 1+1 नहीं सिखाया, डबल डिजिट एडिशन दे रहे हैं. वाई समझिए. टेक योर चाइल्ड बैक वेर इट इज रिक्वायर्ड. ओके, ट्राई टू डू दैट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू, मेरी ना बहुत जल्दी बैटरी भी खत्म होने वाली है क्योंकि एक समय, अरे यार अभी कोई नहीं आ रहा. सॉरी. Okay. So again, I'm going to ask. Okay, now whoever says, the first person says they want to come online, I'll take them. So whoever wants to come online, please send a request and write here, I want to come online, and I will help you. Thank you, Fiona. Please try. Why it is happening? Okay, our children are not our problems. Okay. Is there anyone who wants to come online? या फिर glove? Okay, I want to join. Okay, Alice, I will join. Can you send me a request, Alice, please? Alice, just send me a request. You will see a... here I got it. Seni. Abhi gill ho gayi. Pehle Seni thi. So, you have DM'd me. I have replied your DM'd also. Okay. Hello. Hello. Hi, ma'am. Hi, Alice. How are you? This is John. Fine, ma'am. How are you? Good. कहाँ पे हो? Where are you from? मैम मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी. अरे चलिए, अच्छी बात है. बताइए. मैम मेरा बेटा है 3.5 साल का, बहुत स्टबर्न है, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गया है. और उसके नाना नानी के साथ हम रहते हैं. नाना नानी बस उसको सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, मतलब कुछ भी. और मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल नहीं सुनता है मैम. एग्जाम्पल दीजिए. ये तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं, सॉरी बट मैं बोल रही हूँ, जब मेरे को मदर्स ऐसे बोलती है ना, स्पेशली टॉडलर मदर्स, मेरा मन करता है आओ मेरे बच्चे से मिलो. मेरा सच्ची ऐसा मन करता है, आओ मेरे वाले से मिलो, तुम 2 दिन काट लो. सब सारी मदर्स को ऐसे लगता है, तुम 2 दिन काट के दिखाओ मेरे बच्चे के साथ, मैं मान जाऊंगी तुम्हें. लगता है ना तुम्हें भी? मुझे भी ऐसे लगता है. मैम बिल्कुल नहीं सुनता है. जैसे अगर मैंने बोला टीवी नहीं देखना है, तो वो सीधे जाएगा, नाना टीवी देखना है, ठीक है, ऑन कर दिया. मेरी बात सुनो, इसी पे आती हूँ. मेरा लाइव स्टार्टिंग से देखा कि बीच में देखा, पहले बताओ. मैम बीच में देखा. बच्चों को नो नहीं समझ में आता, ठीक है. टीवी नहीं देखना जैसे बोलोगे, उसके दिमाग में टीवी छपेगा. अभी मैं आपको बोलती हूँ, आपने पिंक मंकी के बारे में नहीं सोचना. पिंक मंकी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो. आपके दिमाग में क्या आया? पिंक आया ना? बोला तो क्यों सोच रहे हो आप? है ना? बोल. हाँ. तो बच्चों को और ह्यूमंस को ऐसा नो नहीं समझ में आता, ठीक है. तो आपने उसको वो बोलना है जो आप वो चाहे कि वो करे. ओके. ठीक है. दूसरी चीज, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, नाना नानी तो आपके मम्मी पापा है. ले, उनको समझाना ज्यादा इजी. आप बोलो सास ससुर हो तो मैं कुछ आपको बोलूं. सास ससुर को समझाना थोड़ा ट्रिकी होता है. थोड़ा हमें मोल्ड करके बातें बोलनी होती है. मम्मी को तो जो बोल लो यार, उसमें क्या है. तो लेकिन समझते नहीं है ना वो. कहते हैं ना फर्स्ट बॉर्न है तो बहुत ज्यादा पैम्परिंग एंड ऑल इन सब में रहते हैं. हाँ, तो मैं ऐसे समझाती हूँ. अभी नहीं, आई थिंक 1.5 महीना पहले ना एक मदर आई थी, सेम प्रॉब्लम. मेरा उसके इन-लॉज थे कि वो उसको चॉकलेट खाने देते, वो ये खाने देते, मैं मना करती हूँ. मैंने एक ही चीज पूछा, किसके होंगे? आपके बच्चे के होंगे? मैंने उसको पूछा कि जब आपके इन-लॉज उसको चॉकलेट दे देते हैं, स्वीट्स दे देते हैं, स्पेशली लॉलीपॉप देते हैं जिससे दांत आ जाते हैं, तो मैंने कहा दांत किसके खराब होंगे? आपके मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ के दांत खराब होंगे कि बच्चे के होंगे? बच्चे के. तब आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ क्या करेंगे? कुछ भी. राइट. तब तो हम सिर्फ पछता ही सकते हैं. ब्लेम किस पे आएगा? तब सबसे पहले बताओ, ब्लेम किस पे आएगा? एग्जैक्टली. जब बाद में ब्लेम लेना ही है तो भी स्टैंड कर लेती हूँ ना. ब्लेम तो
देखो ये मेरे को सारे कहते हैं कि ऐसा क्यों, मैंने कहा देखो ये ना पता नहीं भगवान ने बनाया है। बच्चा कुछ अच्छा करे तो किसी और ने किया, बच्चा कुछ बुरा करे तो माँ ने किया। एग्जैक्टली। ऐसा भी होता है। बेटा कुछ अच्छा करे तो मेरा पति आ जाता है पूरा, अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और ऐसे ही मेरे बच्चे ने कुछ गलत काम किया, जोर से बोला, कुछ किया, अपने बच्चे को समझा के, दिव्या देख कैसे बात कर रहा है, मैंने कहा क्यों, अब मेरा बच्चा कैसे हो गया वो है। तो सही ये बात है। करके चलो, सारी बातें हमारे पे ही आनी है। तो जब बात मेरे पे ही आनी है, देन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जाके उनसे बात करूं और बोलूं कि नहीं हम नहीं देंगे, इट इज नॉट गुड फॉर द आईज, डू सम रिसर्च, शो इट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। यू डू द, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, व्हेन यू हैव टू पेरेंट लाइक दिस, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ही आएंगे, ठीक है। डू लिटिल बिट रिसर्च, टेल देम पापा देख लो ये रिसर्च भी बता रहे हैं, अगर इतना ही घंटे बच्चे को टीवी दिखाना है, ऐसे प्रोग्राम ही दिखाने हैं, आपके टाइम पे टीवी नहीं था, ये इतना सब कंज्यूम करने को नहीं था। आजकल बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, मायोपिया हो रहा है, मैम इसकी वजह से इतना हाइपर एक्टिव है, इतना हाइपर एक्टिव है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, 10 डेज का है अभी मेरा बेबी, 1 2 सेकेंड। तो उसको भी मतलब इतना वो करता है, मेरा छोटू बेबी लगता तो है कि प्यार कर रहा है, पर डर लगता है कहीं कूद ना जाए, कहीं मतलब कुछ वो ना कर दे। और मतलब बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बैठता नहीं है, और मैम खाना तो बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल अब भी। मुझे वही बोल रहे हो जो हर माँ की प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बैठता नहीं, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। देखो पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कब थैंक सिर्फ यू। 10 दिन पुराना और आप खड़े हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। मेरा तो बच्चा जब हुआ था मेरे को तो 1 महीना समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो चलो मतलब रियलिटी होती है ना कि ऐसा तो नहीं सोचा था मदरहुड होगा, बट having said that, I will say that this is a very sensitive time for your elder one, ठीक है। छोटे वाले फिर भी अपनी मम्मी के पास छोड़ सकते हो टू टेक केयर, बड़े का टेक केयर आपको ही करना। वो चाहे जितना मर्जी शो करे कि मेरा छोटा भाई है या मेरी छोटी बहन है, मतलब whatever, थोड़ा बहुत ना वो इनसिक्योरिटी रहती है बच्चे में, एंड योर चाइल्ड नीड्स दैट कनेक्शन विद यू। कनेक्शन। So as a parent, if you personally ask me, I'll say it's okay अगर वो आजकल कुछ नहीं खा रहा या अपने मन से खा रहा है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है, ओके। एक फेज है जहाँ पे इतने सारे चेंजेस हो रही है उसके आसपास कि अगर वो 2-3 चीजें हट भी जाए ना, इट इज ओके, उस पर स्ट्रेस मत लो। पता है क्या होगा, आपके पास वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, यूर अ न्यू मॉम, राइट। आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसका स्ट्रेस है, ठीक है। वो बताओ थोड़ी सच्ची, उसका स्ट्रेस किस पे निकलेगा? मैम इसी के ऊपर निकलेगा। तो फिर वो बेचारा नहीं खाना खा, उसका स्ट्रेस छोड़ दो, अपने आप को बोलो ये टेम्पररी है, जब थोड़ी चीजें सेटल हो जाएंगी, आई विल वर्क ऑन मेकिंग श्योर कि ही ईट्स एवरीथिंग। सब कुछ हमें एज अ मदर ना आज करने की जरूरत नहीं है, अब भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बच्चा आज पालक नहीं खा रहा है या फिर हेल्दी चीज नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, जब मैं अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, फिर ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी कि मैंने इसको ये कैसे खिलाना। हम लोग सुपर वुमेन तो है नहीं कि हमारे पास सारा सोल्यूशन एकदम आएगा, नहीं आ सकता। तो प्रायोरिटाइज, अभी प्रायोरिटी क्या, अभी प्रायोरिटी मेरे को देखना है अपने आप को, क्योंकि अगर मैं खुश हूँ तभी मेरा छोटा बच्चा भी खुश है और मेरा बड़ा बच्चा भी खुश है। खाना उसको खिला दूंगी व्हेन आई गो बैक होम, यू नो, जब थोड़ा जब जब सब कुछ आसपास मेरे नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी इतने सारे चेंजेस है ना, आपके लिए तो चेंज है, राइट, उसके लिए भी चेंज है, राइट। लेकिन having said that, you can always tell your parents कि पापा इसको टीवी मत दिखाओ, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स, यू नो, एक्टिविटी शीट्स मंगा ली, क्लास मॉनिटर हो गया, प्रिंटो हो गया, बहुत चीजें, उनकी शीट्स मंगा ली, यू नो, कुछ ऐसी चीजें ले आए जिससे बच्चे को, आप बैठे, आपका बच्चा साइड पे बैठा, आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, यू नो, ऐसी चीजें कर ली, यू नो, फाइंड सोल्यूशन, नानू के साथ बाहर भेज दिया, एंड गो एंड टॉक टू योर चाइल्ड, योर पेरेंट्स ऑलवेज, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, मम्मा की है, सही आपकी ही है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे मम्मी या पापा को बुरा लगेगा, तो फिर ये याद रखना, बुरा लगे कोई बात नहीं, हेल्थ किसकी जा रही है,
हम्म है? और अगर मैं जी। प्यार से बोलूंगी तो आई एम श्योर दे वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड आल्सो ना। हम्म प्यार से बोलोगे तो सुन लेंगे। मेरे मेरे डैड तो ऐसे टॉफी निकाल निकाल के देते थे मेरे बेटे को, फिर हम्म मेरे को बंद कराना पड़ा कि आप हफ्ते में एक बार दिया करो, आप ही दे दो, हफ्ते में एक बार दिया करो, हम्म ठीक है। तो जी आप थोड़ा रेस्ट करिए, ठीक है। And जी जी some time, and as I said, this is a new phase. It's a change for you. It's a change for your child also. ठीक है, उसको भी थोड़ा समझिए, उसके tantrums हो सकता है बढ़ जाएंगे. It is okay. Okay. Your elder ओके one needs you more than your younger one right now, emotionally. ठीक है. Take care of yourself. No problem. ओके थैंक Bye. यू चलो, थैंक यू सो मच। आज लाइव बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो गया, एंड आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। नेक्स्ट वीक पक्का सिबलिंग राइवलरी, नो वोटिंग, नथिंग, सिबलिंग राइवलरी पे बात करेंगे। बहुत क्वेश्चंस आए हैं मुझे, एंड आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एंड see you next Thursday. Bye. Oh, one last thing. All the recordings of live will be on my profile page पे होगा ही होगा। प्लस मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैम आप प्लीज यूट्यूब पे डाल दिया करो, उस पर देखना इजी रहता है। तो आई विल स्टार्ट पुटिंग द लाइव का रिकॉर्डिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, विच आई शेयर ऑन माय स्टोरीज। तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो टू यूट्यूब एंड चेक द लाइव का रिकॉर्डिंग ऑल्सो इन केस यू मिस्ड इट। ठीक है, चलो बाय। Prioritize mothers, we cannot do everything. Let's prioritize ourselves, what is important right now, and things are going to be much more easier. Happy parenting. Bye.